Student, good morning. I am Sanjay sir. I am teaching you chapter number 16, that is patterns. And in patterns, you see that many patterns, many designs, flower design, etc. in your daily life. The design you can see in your drawing book also, and you are also often making the designs in your drawing notebook. And you see at home different tablecloth, sari, etc. You see there are many designs, and they are made. All designs are made with some pattern. Whenever they design some patterns, some form of pattern is to be followed. So in your book, in your syllabus, the patterns in the geometrical shapes. First, we have to study about the patterns in the geometrical shapes. And in this, we have the first point is mirror arc. When you are standing in front of the mirror, you see your image, you see your reflection. That is the mirror arc of your face and your body also. So that is known as the mirror arc. I draw here some figures, and you have to cut these figures. You have to draw the middle line of reflection in each figure. So how can we draw? We can draw like this. Like this we can draw the middle line of reflection. Like this. This is a rectangle in which you see one mirror line. One mirror line and one more mirror line we can draw here also. Like this. Student, I tell you in Hindi, ये मेरा रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी अपनी इमेज है, और अगर हमने इस रेक्टेंगल को काटा है तो अगर हम इसको काटेंगे इस तरह से काटना है कि इसकी दोनों साइड हमें हमको ये सेम दिखाई दे, एग्जैक्टली सेम. There must be no difference. In the same way, we can draw the middle line of reflection like this. So there, in the same way here in the triangle also, like this, we can draw the line, middle line, and mirror half. In circle also like this, like this. So these are the middle line, mirror half of the figure. In this way, in your exercise number 16.1, you can draw yourself the mirror line of reflection or mirror half. You see that what the first question? Some pictures are given below. Using the dotted line, divide those pictures which form into two similar arcs. ओनली केवल आपको उन्हीं पिक्चर्स में ड्रॉ करना है जिनमें कि आप ड्रॉ कर सकते हैं. कुछ ही पिक्चर्स को हम मिरर आर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 60.1, फर्स्ट यू सी दैट देयर इज अ ट्रायंगल व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मिरर आर्क्स लाइक दिस. क्लियर? सेकंड फिगर इज ए. सो हाउ कैन वी ड्रॉ? In A, we can draw its mirror arc like this. इसका mirror arc आप इस तरह से बना सकते हो. उसके बाद M है, M में भी mirror arc बन जाएगा, क्योंकि हम ये जो लाइन बना रहे हैं उसके दोनों साइड हमें ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए. उसके बाद स्क्वायर का तो हमने आपको ऊपर ही बता रखा है, उसी तरीके से आप बना देंगे. ठीक है, इस तरह से. All these are called mirror arcs, but in Q there will be no mirror arc, because this Q cannot be divided. No mirror arc. You write your answer. No mirror arc possible. Because there is a problem. If we divide this Q into equal parts, then it is not possible. Because its design is different in both the arcs, so they are
not said to be called the mirror halves. Next, with the shape of the cup, we cannot divide this also into two mirror halves. Can we divide? You see the shape? Yes. We can divide it horizontally like this. In this way, you have to complete this exercise. The remaining question you will do yourself. Only those figures, केवल वही फिगर्स में आपको ड्रॉ करना है जिसमें पॉसिबल है. बाय मिस्टेक आप अगर ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. इज इट क्लियर? सो दिस इज योर एक्सरसाइज 16.1. यू हैव टू draw the mirror halves in each figure. Some figures, in some figure I already explained you. I have already drawn the mirror half lines you see in the video. Now some other patterns, making patterns from geometrical shape. Next heading, making patterns from geometrical shapes. Is it clear? This is our next topic. So with the help of this, how can we make the pattern by using the geometrical shapes? So first example is this your book. We divide this into 5 parts like this. 1, 2, 3, 4, 5. Now if we draw one line segment, this is a line segment in the first box, then we will draw one more line segment like this. This is a horizontal line segment and this is also horizontal. Then we draw one vertical line segment. Is it clear? Now we can further in the third box what we do? Again we draw the one more line segment like this, and in the fourth figure also we can draw one more line segment like this. So in this way we can complete the pattern. So you see that this is an example of making the pattern with the help of geometrical shapes. Geometrical shape की सहायता से हम कैसे पैटर्न्स को बनाएंगे वो आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया है. Clear? Now we come to the next exercise. Exercise number 16.2. इसमें आप देखेंगे पैटर्न जो बनाए गए हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप से बनाए गए हैं और उनको हमें कंप्लीट करना होता है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको जो पैटर्न दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 बॉक्स बनाइए. पहले आपको क्या करना है, 7 बॉक्स बनाने हैं. पहले इस फिगर को ऐसे कैसे कॉपी कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर. ठीक है, पहला बॉक्स देखिए 1 2 3 4 5 6. One more box you have to draw here so that you could complete the pattern. Now in the first box we have to draw one line segment like this. Then in second we have to draw one more line segment joining with the earlier line segment like this. Then we have to draw one more line segment in the next figure like this. अब आपने देखा पहले बॉक्स में एक ही लाइन सेगमेंट है, दूसरे में 2 लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किए हैं, तीसरे में 3 लाइन सेगमेंट. अब अगले फोर्थ वाले में एक और लाइन सेगमेंट बढ़ जाएगा. वो कैसे बढ़ेगा? लाइक दिस. ठीक है, इससे अगले में एक और बढ़ा देंगे. ये इस तरह से, उससे अगले में एक और बढ़ाना है. अगला वाला अपने आप करिए कि किस तरह से क्या आएगा. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न एक्सरसाइज नंबर 16.2.
Now friend, question number 2 that I am going to explain you exercise 60.2. In this question, you see that there is one vertical line. खड़ी हुई लाइन दिखाई सबको, ये वाली लाइन, ठीक है। अगले कॉलम में उसने एक लाइन और खींची है, इससे एक एंड पे जुड़ी हुई इस तरह से वी की शेप। उसके बाद में अगले वाले में उसने एक और लाइन बढ़ाई। आप देख रहे हैं कि हर बार जब हम बॉक्स चेंज करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बढ़ता जाएगा हर बार। फर्स्ट वाले में 1 है, इसमें 2 लाइन सेगमेंट है, और इससे अगले वाले में आप देखेंगे 3 लाइन सेगमेंट मिलेंगे। कैसे? इतना तो हमें बनाना है, उसके बाद में एक लाइन सेगमेंट ऐसे और बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में फिर एक और बढ़ जाएगा ऐसे, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में? फर्स्ट वाले में एक लाइन सेगमेंट, 1 लाइन सेगमेंट, देयर आर 2 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, देन 4। अब नेक्स्ट वाले में 5, 6, 7, इस तरह से आपको इसको पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करेंगे बच्चे अपने आप, ठीक है। 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In this way, you have to complete it yourself. In the same way, question number 3 also, there is 1 line segment. Then, in the second box, 1 small line segment is there. सेकंड वाले बॉक्स में क्या हुआ है? ये तो एक बड़ा लाइन सेगमेंट है, उसके बाद में इस बड़ी लाइन सेगमेंट में एक छोटा लाइन सेगमेंट और जुड़ा गया है, ठीक है, लाइक दिस, जो कि उसके एंड पे 1 एंड पे जाके उससे ज्वाइन कर रहा है। अब नेक्स्ट वाले फिगर में क्या होगा? नेक्स्ट वाले में एक और छोटा लाइन सेगमेंट मिलेगा इसको इस तरीके से। तो देख रहे हैं आप, एरो की शेप बन गई है। उसके बाद में फिर इससे अगले में नेक्स्ट वाले में क्या करोगे आप? इसके बाद में इसको तो हम ऐसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट और बनाएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, अब इसको हमें ऐसे कैसे बना देना है, और जो नीचे वाला लाइन सेगमेंट है उसमें हमें एक छोटा लाइन सेगमेंट इस तरह से जोड़ देंगे। फिर उससे नेक्स्ट देखिए क्या होगा, अगला इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट, फिर ये लाइन, क्लियर? इस तरह से आप इसको इंक्रीज करेंगे और इस वाले को आप अपने आप बनाएंगे। इसमें क्या होगा? Yes, I left for you. You have to complete it yourself. Is that clear? So this is about your second exercise. Now the next topic is number patterns. Student, number patterns are based on the different type of numbers which have some pattern. For example, जब आप 2 की टेबल बोलते हो तो 2 बजा 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो आप देखते हैं कि हर आगे आने वाला नंबर 2 की टेबल में पहले वाले नंबर से 2 ज़्यादा होता है। जैसे 2 में 2 प्लस करोगे 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करोगे 6 आएगा, 6 में 2 प्लस करोगे 8 आएगा। तो ये 2 की टेबल एक क्या है, पैटर्न। ऐसे ही 3 की टेबल पे एक पैटर्न है, 4 की टेबल पे एक पैटर्न है। ये सब पैटर्न कहलाते हैं, नंबर पैटर्न से, ठीक है, क्योंकि ये नंबर पे बेस्ड है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, आप अपनी बुक में देखिए नंबर पैटर्न्स के एप्पल्स दे रखे हैं, एप्पल की सीरीज है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एप्पल है उस पर 12 लिखा हुआ है, दूसरे पे 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो आपने क्या पैटर्न देखा है इसमें बच्चों? इसमें आप देख रहे हैं कि पहले वाले में 12 है और दूसरे में 18 है। तो 18 कितना ज़्यादा है? 12 से 6 ज़्यादा है। फिर उससे अगले 18 से आगे वाले में 24 है, तो 24 वाला कितना 18 से ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, 86 मोर, 6 ग्रेटर। नीचे वाले पैटर्न में देखिए एप्पल वाले में, उसमें भी आप देख रहे हैं कि 66 है पहला, और फिर उसके बाद 60 लिखा हुआ है, फिर 54, फिर 48, 42 लाइक दिस। तो इसमें जो पैटर्न है उसमें जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, लेस हो रहा है। तो यहाँ पे पहला 66 है, तो उससे अगला, उससे 6 कम कितना होगा? 60। फिर 60 से 6 कम अगला नंबर क्या होगा? 54। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं, ये आपको जो पैटर्न शो किया गया है वो मल्टीपल ऑफ 6 का है। उसके बाद नीचे देखिए मल्टीपल ऑफ 9, यहाँ पर मैंगो शो किए गए हैं।
मैंगो में आप देख रहे हैं पहला मैंगो है 27 और नंबर का, उसके बाद फिर अगला है 36, देन 45, देन 54 लाइक दिस। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न है क्योंकि हर आगे आने वाला नंबर पहले वाले नंबर से 9 ग्रेटर है। सिमिलरली नीचे देखिए, नीचे वाला पैटर्न, उसमें आप देख रहे हैं कि 108 है पहला नंबर, फिर 99 है, फिर 90 है, फिर 81 है। तो नीचे जो मैंगो का पैटर्न है उसमें हर आगे आने वाला जो मैंगो है वो पहले वाले मैंगो से 9 कम आ रहा है। क्लियर? तो वहाँ पे 9 लेस देन होगा और पहले जो मैंने समझा था उसमें 9 ग्रेटर देन होगा। ओके, नाउ आई कम टू द ब्लैकबोर्ड। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 16.3। एक्सरसाइज 16.3. What is there? First question. Complete the sequences. Complete the patterns. So first A part. You are given 72, 78, 84. Further, numbers are not given. You have to write the numbers. 3 numbers you have to write. Only 3. One here, other here, and here. 3 more numbers you have to write in this pattern. लेकिन पहले हमें पैटर्न को ये देखना पड़ेगा कि हम नंबर को लिखेंगे किस तरीके से। जैसे 72 है तो 72 से अगला नंबर है 78 है, तो 72 से 78 कितना ग्रेटर हुआ? 6 ग्रेटर हुआ। फिर 84 को देखो, 78 से 84 कितना ग्रेटर है? 6 ग्रेटर है। तो ये इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी नंबर अब आगे आएंगे वो पहले वाले नंबर से 6 ग्रेटर होंगे। तो इसलिए 84 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 90 हो जाएगा। 90 में 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 96 हो जाएगा। 96 में 6 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट बाय एडिंग 6। By adding 6. So this is the rule of the pattern by which we can find the numbers. एक रूल इसमें छुपा हुआ था, तो रूल हमने पता किया पहले। रूल को पता करने के बाद में फिर हमने आगे के नंबर्स को लिखा। तो हर सीक्वेंस में इस तरह के नंबर पैटर्न में आप देखेंगे कोई ना कोई रूल छिपा होगा। वो रूल हम पहले पकड़ेंगे, उसके बाद में फिर आगे का आंसर निकालेंगे। ये वाला पार्ट देखिए, 120, 114, 108। ठीक है, अब इसका रूल देखना है आपको। क्या रूल होगा इसमें? 120 से 114 कितना कम है? कम हो रहे नंबर, तो ये लेस आएगा। ठीक है, वहां पर बाई एडिंग 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 ग्रेटर। यहाँ पर आप लिखेंगे लेस, क्योंकि 120 से 114 कितना कम है? 6 कम है। 114 से 108 कितना कम है? 6 कम है। तो यहाँ पे 6 लेस देन है, 6 लेस देन। तो 6 लेस करते हुए आप नंबर लिखते जाइए। 108 में 6 का कितना बचा बच्चों? 108 में 6 का 102 बचेगा, फिर 96 आएगा। ठीक है, फिर उससे 6 कम करेंगे तो 90 आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड पार्ट। नाउ सी योर थर्ड पार्ट। Third part, the sequence given 726, 720, 714. And 3 more numbers you have to write by finding the rule. रूल को फाइंड करके हम 3 और आगे के नंबर्स को लिखेंगे। कैसे रूल फाइंड करें? 726, 720, यहाँ पर कम हो रहे हैं नंबर, तो कितना कम हो रहा है? 6 कम हो रहा है। 6 कम हो रहा है तो 726 में से 6 गया तो कितना बचा? 720। 720 में 6 गया कितना बचा? 714। उसमें से 6 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 708 आ जाएगा। उसमें से 6 कम करोगे 702 आ जाएगा। इस तरह से आपको कम करते हुए लिखना है। यहाँ पर लिख देंगे अगेन 6 लेस देन, 6 लेस देन। तो ये रूल इसमें छुपा हुआ है। दैट रूल यू हैव टू डिस्कवर फर्स्ट, देन यू कैन राइट योर आंसर। Now I left this for you. You will be completing yourself. ये वाला पार्ट देखिए, 81, 90, 99. Now 3 more numbers which follow the same pattern. First we find the rule behind the pattern, or what rule is
गिवन इन द पैटर्न 81 to 90। 81 to 90 बच्चों, 81 से 90 जो नंबर है वो 90 नंबर आप 81 में कितना प्लस कर देंगे 90 आ जाए, तो 81 में आप 9 ही प्लस करोगे तभी 90 आएगा, और 90 को में हम क्या प्लस कर देंगे 99 आ जाए, तो उसमें हम 9 प्लस करेंगे तब 99 आएगा। तो 99 में से अगला नंबर लिखने के लिए हम 99 में फिर से 9 प्लस करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। तो 99 प्लस 9 कितना होगा 108। फिर उसमें 9 प्लस करिए, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, तो 107। इस तरह से आप इसमें अपने आप लिखिए, इसमें अपने आप लिखिए, अपने आप लिखिए, अपने आप लिखिए। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस पैटर्न योरसेल्फ। नेक्स्ट ई वाला 378, 369, 360। नाउ अगेन पहले हम रूल को फाइंड करेंगे, उस रूल के अकॉर्डिंगली हम आगे के नंबर्स को लिखेंगे। 378 to 369 आप देख रहे हैं नंबर कम हो रहे हैं। पहला नंबर सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर है, उससे आगे वाला स्मॉलर है, तो उससे आगे वाला उससे भी स्मॉलर है। तो लेट अस फाइंड द रूल फाइंड करते हैं। 378 में इसके बाद में 369, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का आ रहा है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे 369 से 369 का आ रहा है, तो हम 9 इसमें से कम करते जाएंगे, तो यहाँ पर रूल क्या होगा 9 लेस देन, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो रूल फॉलो किया था यहाँ पे 9 मोर 9 ग्रेटर, क्लियर। नाउ 9 लेस देन, तो 360 माइनस 9 कितना होगा बच्चों, 360 में से जब 9 माइनस करोगे तो 351 मिलेगा। 351 में से फिर 9 माइनस करिए तो वह मिलेगा आपको 342। और अगला वाला आप अपने आप रखेंगे, क्वेश्चन मार्क में लगा के छोड़ रहा हूँ, दैट यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। तो ये आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ आई टेल यू हाउ टू डू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट फर्स्ट इज 553, 546। We have to write one more number. Clear? इसमें 6 पार्ट है, सभी 6 पार्ट में आपको एक एक नंबर डालना है, लेकिन हमें पैटर्न के अकॉर्डिंगली नाम डालना है, जो इसमें रूल दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली डालना है। We have to write। तो चलो रूल को फाइंड करते हैं। 553 के बाद में 546 आ रहा है, तो ये इससे कितना कम आ रहा है 7 कम आ रहा है, राइट। तो हम इसमें से 7 कम कर देंगे। 546 में से 7 गया कितना बचा 539, ठीक है। तो आपका कैसे बी वाला में आपको दिया है 552, 560, देन 552 से 560 कितना ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर बाय 8, तो अगला नंबर क्या होगा 568। क्लियर। नाउ सी पार्ट 744, 738, what is the next number? Who will tell me? You just think. What is the next number? 738 से 744 बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये इससे कितना ग्रेटर है 744, और ये वाला इससे लेस है। तो यहाँ पर लेस में आपको माइनस करना है, जब लेस होता है माइनस करते हैं, ग्रेटर होता है तो प्लस करते हैं। तो 744 से 738 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 738 में 6 का कितना हो जाए 732। दिस इज द आंसर, राइट। नाउ DEF डी वाला देखिए 959, 952। Now what is the next number? Let us find the root। 959 और 952, आगे वाले नंबर कम हो रहे हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा। 959 में से 952 कितने का डिफरेंस है दोनों में 7 का, तो हम 952 में से 7 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 945, ठीक है। इस तरह से आपको ई और एफ कंप्लीट करेंगे। डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ।
क्योंकि आपके पास समझ में आ गया, इसलिए मैंने इन दोनों को छोड़ दिया आपके लिए। यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। नाइस स्टार्ट स्टूडेंट्स, नाउ आई एक्सप्लेन यू द इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। यू सी दैट you learn the table of 2, 2 1 2, 2 4, 2 6 2, 2 4 8, 3 6, 2 4 8, etc. This way you learn the table. So in this table, whatever number you are getting, you are writing that those numbers are called the even numbers because these numbers can be divided by 2. जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते जैसे 1 3 5 7 और इसके आगे के नंबर 9 वगैरह, तो वो नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होते वो नंबर कहलाते हैं क्या? ऑड नंबर्स। क्लियर? तो इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, इनका डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों। अब मैं आपको एक्सरसाइज समझाता हूँ जो आपको दी हुई है। एक्सरसाइज नंबर 60.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, find the even and odd numbers between 561 and 615। आपको दो नंबर दिए हुए हैं 3 डिजिट के, 561 दे रखा है और 615 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच के आपको इवन और ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो लिखते हैं इवन नंबर्स आर ठीक है। पहला इवन नंबर क्या होगा बच्चों? 561 है, उसके बाद में इससे अगला क्या होगा? 562, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या होगा? 564, फिर इससे अगला 566, नेक्स्ट 568, देन 570 एंड सो ऑन up to, you have to write up to 614। ठीक है, in this way you could write odd numbers। odd नंबर में आप लिखेंगे 563, इससे अगला नंबर, इससे अगला क्या होगा? 565, फिर इससे अगला क्या होगा? 567, फिर क्या होगा? 569 5, उसके बाद में अगला क्या होगा? 571 एंड सो ऑन, लास्ट में आपको मिलेगा 613। इसमें ध्यान दें इन दोनों नंबर्स को नहीं रखना, क्योंकि उसने कहा है कि इनके बीच के नंबर होने चाहिए, तो बीच वाले नंबर ये होंगे तो वही हम लिख देंगे इवन एंड ऑड नंबर्स दिस वे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, from 1 to 35 to 1310, दो नंबर आपको दे रखे हैं 1235 एंड 1310, इनके बीच के आपको इवन ऑड नंबर लिखना है। हाउ टू राइट इवन नंबर्स? इक्वल टू फर्स्ट इवन नंबर विल बी 1 2, बस यहाँ का यूनिट चेंज करना है आपको। 1 2 3 5 की जगह आ जाएगा 6, 1 2 3 6 इवन नंबर। देन यू राइट नेक्स्ट इवन नंबर इज 1 2 3 8, देन नेक्स्ट इवन नंबर इज 1 2 4 0, देन 1 2 4 2। इस तरह से आपको लिखते जाना है और लास्ट में आपको मिलेगा 1308। ये नंबर होगा जो कि इवन नंबर होगा लास्ट में। अब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स में देखिए पहला ऑड नंबर 1 2 3 5 के बाद में पहला ऑड नंबर जो आएगा वो आएगा 1 2 3 7, फिर इसके बाद आएगा 1 2 3 9। ऊपर वाले नंबर्स को देखते जाओ और उसके आगे वाला नंबर नीचे लिखते जाओ। यहाँ पे 1 2 4 0 तो अगला आएगा 1 2 4 1, फिर आएगा 1 2 4 2 तो 1 2 4 3,
इसी तरीके से लास्ट में मिलेगा आपको 1309. So this is the answer. Clear? Now third question. Although third and fourth in the same way you have to write the even and odd numbers. So third and fourth both do yourself. बच्चों आप तो समझ में आ गया आपके, तो आप अपने आप कर सकते हो, इसलिए आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना है. डू योरसेल्फ. ठीक है, तो दिस फिनिशेस योर चैप्टर. Students, test paper number 1 and 2 will also come in the half-yearly examination, so you have to prepare them yourself. I am giving you the hint of some questions which are difficult for you. Question number 1, for example, question number 1, fill in the blanks. So this you have to complete yourself. Question number 2, that is also a question which is already clear to you. You have to find the place value of the underlined digit. Okay? So this question you have to do yourself. Question number 3, find the difference between this is not in syllabus, because this chapter is not coming in the half-yearly examination. Question number 4, according to census, there are census means बच्चों क्या होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना जिसको कहते हैं. तो देयर आर 8,12,560 men and 6,15,780 women and 2,55,760 children in the city. What is the population of the city? आपको पता है कि एक सिटी के अंदर मैन, वुमेन और चिल्ड्रन सब लोग रहते हैं. तो एक सिटी के अंदर इतने मैन है, इतने वुमेन है, इतने चिल्ड्रन है, तो उसके अंदर कितने लोग रहते हैं. तो क्या करेंगे इसमें बच्चों, प्लस करोगे. सबों को स्टेटमेंट लिखते हुए यू विल फाइंड द सम ऑफ ऑल द मेंबर्स लिविंग इन द विलेज और लिविंग इन द सिटी. क्वेश्चन नंबर 5, find the area of rectangle of length 75, breadth 68. This I explain you. Here is a rectangle, right? इसकी shape of the rectangle, length equal to 75 centimeter, breadth, length means लंबाई, breadth means चौड़ाई, breadth equal to 68 centimeter. We have to find the area. बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला में पहले बता चुका हूँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी. L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेड्थ. लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 68 सेंटीमीटर. आपने देखा कि आपको यहाँ पे 75 और 68 का मल्टीप्लाई करना है, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर. और यहाँ पे आपको आंसर मल्टीप्लाई करके अपने आप निकालेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6 क्वेश्चन. Find the difference between the largest 5-digit number. First you write the largest 5-digit number. Largest 5-digit number. So tell me what is the largest 5-digit number? Largest, जब भी हम largest number बनाए तो उसमें 9 को लिखेंगे. जितने डिजिट का हो उतनी बार हम 9 को लिख देंगे. तो यहाँ पे 5 डिजिट का है तो 5 बार 9 लिख देंगे. ठीक है, this is the largest number of 5 digit and the smallest 6 digit number. Smallest 6 digit number. This is equal to 1 0 0 0 0. So this is the smallest 6 digit number. Now out of these two numbers, which number is greater?
So we see whenever number of digits are more in any number, that number is more or greater than the other number which is having less number of digits. So 10,000 is the small 6-digit number is greater than the largest 5-digit number. So we will find their difference by subtracting them. How can we subtract? We write here 9, 9, 9, 9, 9 minus, then cut everywhere. Here we write 9, 9, 9, 9 and 10. 10 minus 9, 1, 0, 0, 0, 0. So this is the answer. Answer equal to 1. So this is your answer. We have to leave these zeros. We will not write them in the answer. Next question. A typist can type 48 words per minute. क्वेश्चन नंबर 7. एक टाइपिस्ट है, टाइप करने वाला है जो कि 1 मिनट में 48 वर्ड्स को टाइप कर रहा है, तो 6 आवर्स में कितना करेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 आवर में कितने मिनट होंगे वो निकाल दो. वी नो दैट 1 hour equal to 60 minutes. 6 hour equal to how many minutes? 60 into 6, 360 minutes. Now, what is given in the question? You are given that he typed 48 words in 1 minute. Number of words typed in 1 minute equal to 48. Now next statement is number of words typed in 360 minutes, यानी 6 घंटे, 6 hours. So how will we write the statement like this? Now you have to multiply, you will get the answer as words. You have to complete it yourself. Is it clear to everybody? Question clear? Now question number 8, that you can do yourself. Do yourself. आपको इसमें लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं, ठीक है? वो लाइन सेगमेंट आप अपने आप ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से. 8 first part, second part. 8 second part is perimeter of rectangle field is 100 meter. Perimeter equal to 100 meter. Clear? Length यानी है equal to 30 meter. Find its breadth. You have to find breadth in the question. Question 1. So what the formula I told you in the class? What the formula for finding the breadth? Breadth equal to perimeter divided by 2 minus length. Then what is the perimeter? It is 100 divided by 2. पहले 100 को 2 से डिवाइड करना है. लेंथ कितनी है? 30. वो सब्ट्रैक्ट करनी है. तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 50 माइनस 30. तो आ गया आंसर 20 मीटर. तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. इसमें भी पहला क्वेश्चन स्टेट एंड डूइंग themselves. Question number 2. Greatest 5-digit number. Divided by the product of 6 and 7. Product of 6 and 7. Six into 7, 42.
So student, find the question root. Now you have to divide this number by 42. Then here you will get the quotient and here you get the remainder. So you have to find the quotient and remainder. You have to complete it yourself. Question number 3. I should take it here. Question number 3 है, a bag contains, listen student carefully. First you make clear in mind how to do the question. First I explain. A bag contains 9064 gram of sugar, another bag contains 7952 gram of sugar. What is the difference in the quantity of sugar between the two bags? So you have to simply subtract. You have to subtract both the values, then you will get the answer. But you have to write the statement. So you will be doing yourself. Question number 4, not according to syllabus. Question number 5. Sir, listen carefully. I explain you the question number 5. A company bought a car for rupees 2,56,517 and scooter at rupees 221,544. How much money did the company invest on these vehicles? कार इतने रुपए में आई है, स्कूटर इतने रुपए में आया है, तो आपको इन दोनों को ऐड कर देने का है. उसके बाद में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको स्टेटमेंट इसके अलग से अलग लिखने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू योरसेल्फ. Do yourself. Next question is 6. Let us see what the question number 6. The difference of two number is 7058. If the larger number is this, find the smaller number. So what we do in this question, larger number हमें दे रखा है और दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो हमें स्मॉलर नंबर निकालना है. तो लार्जर नंबर में से जो डिफरेंस है उसको हम माइनस कर देंगे, तो उसके बाद में इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर? डू योरसेल्फ. Question number 7. Find the area of square with perimeter is 1/2 meter. This I explain you. Area of square equal to side into side. ये आपको पहले ही बता दिया गया है फॉर्मूला. तो हमें इस क्वेश्चन में साइड कितनी दे रखी है? 1/2 मीटर. और फिर दूसरी साइड भी वही होगी क्योंकि ये स्क्वायर है और सारी साइड इक्वल होती है. तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों. उसके बाद में इसका आंसर निकालना है स्क्वायर मीटर में, सॉरी स्क्वायर मीटर. दिस इज द आंसर. यू हैव टू मल्टीप्लाई 1/2 into 1/2, then you will get the answer. Now question number 8. Find the divided if quotient is 101, remainder is 5 divided 45. So you know that the divided equal to, मैं आपको क्लास में फॉर्मूला बता चुका हूँ. डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. So this is the formula by which you have to find the answer. पहले हम क्या करेंगे? डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करना है. कोसेंट कितना दे रखा है? 101. डिवाइजर कितना है? 45. तो 45 इंटू 101 प्लस रिमाइंडर क्या है? क्वार्टर रिमाइंडर 5. तो पहले आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में फिर इसमें 5 प्लस करना है, देन यू विल गेट द आंसर. सो यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ. Student, in the question number 9 you are given is this figure of rectangle. It has the length L equal to 12 centimeter and breadth equal to 6 centimeter. So we have to find the perimeter first. Perimeter of rectangle equal to 2 into L plus B.
or you can write 2 into length plus 2 into breadth. So what the answer? 2 into length, 2 into 12 plus 2 into breadth is 6. 12 to the 24, 6 to the 12. So it is equal to 36 centimeter. This is your answer. Now find the area. Area of square equal to side into side. Oh, sorry. Find the area. Area of square. No. It is a rectangle. Area of rectangle equal to L into B. So length is given 12 centimeter. Breadth is given 6 centimeter. We have to multiply 12 into 72 centimeter square centimeter. So this is the answer. This is question number 9. Now question number 10. What is the name of the shape given in the following figure? Name any four solid which have the same shape and you have to do it yourself. Question number 10. Do yourself. Clear? Now question number 11. Do yourself. Then question number 12. Not according to syllabus. Not according to syllabus. Then question number 13. What time is shown in the following? This is also not according to syllabus. Complete the following sequences. 14. 14 A part. You are given the sequence 54, 90, 96. Then you have to write 3 more numbers to complete this pattern. So, student, as earlier I already explained you that how to find the rule in the pattern. So, again you have to find the rule first. Then, according to that rule, you have to write the answer. Write the 3 numbers. So, 84 to 90. So, there is a 84 when increased by 6, then we have 90. If 90 increased by 6, 90 is added by 6, then we have 96. If 96 is added by 6, then which number will come? 102, then 108, then 1014. So this is the first part of the question number 14. Now second part you see. Second part is 825, 820, then 815. Now, first find the rule. How to find the rules? 825, 820, then 825 and 820. 820 is 5 less than the 825. 820, 825 से 5 डैश है, 815, 820 से फिर 5 डैश है, तो अगला जो नंबर होगा वो भी 5 डैश ही होगा. तो 815 से 5 डैश कौन सा नंबर आएगा? 810. इससे 5 डैश कौन सा नंबर आएगा? 805. उससे 5 डैश कौन सा नंबर आएगा? 800. इस तरह से इसको आप कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर रूल लिख देंगे. यहाँ पे क्या रूल हमने फॉलो किया था कि 6 ग्रेटर, और यहाँ पे क्या है? 5 डैश. Now third part 232, then 246, then 260. Write the 3 more numbers which follow the same pattern. So first find the rule. Find the rule 232, 246. How much difference is there? 6 minus 2, 4. 4 minus 3, 1. So 14 difference is there. Again 246 and 260. There is a difference of 14. 14 का difference में आ रहा है
इससे ये 14 जा रहा है, इससे ये 14 जा रहा है, तो इससे अगला नंबर भी 14 ज़्यादा होगा। सो 14 ग्रेटर, दिस इज द रूल। नाउ 14 greater means 260 plus 14 how much? 274. Then again 14 greater 2 14 88. Again 14 greater 2 302 288 and 302. So this is the answer. पहले पॉज